Okay, guys, can you see me and hear me? Is my voice audible? Yes, sir. Audible? Perfect. Okay, let's start. Good afternoon, everyone. I am Parth, Yes. your Second. co-host for this exciting event, and with me is the dynamic Himang Khanna. And together we are here to embark on an insightful journey into the world of finance. Welcome to yet another engaging episode brought to you by the Finance and Investment Cell of Shahid Bhagat Singh Evening College. Absolutely, Path. It's fantastic to be here, and we are not alone in this journey. We have got an incredible audience, and we are honored to have a very special guest with us today. The one welcome, sir. Thank you so much, guys. I'm super excited to be here. Pleasure is ours, sir. Now, before we dive into the heart of today's podcast, let's take a moment to reflect on the fantastic journey we've had so far. The Finance and Investment Cell has been committed to bringing you up top notch content, and today is no exception. That's right. We are unveiling a new chapter in a podcast series, exploring the intriguing topic, decoding the impact of national budget and market. Ever wondered what goes on behind the scene in the financial world? Well, this podcast is your golden ticket to unraveling the mysteries of national budget. Decoding National Budget isn't just a podcast, it's your VIP pass to understanding how financial decisions play a role in shaping our lives. In each episode, we'll break down economic jargons, untangle the complexities of budgets, and connect the dots between policies and your day to day experiences. And here's the cherry on the top, our phenomenal speaker today, Mr. Harsh Goela, sir, a true wizard in the world of finance. Harsh sir has delivered 4 TEDx talks, 2 Josh talks, and has been featured in Forbes India, Mint, Z Business, Business Standard, and many more. His aspiration to be one of the top 50 stock market investors globally. Welcome, sir. Thank you so much, guys. It's a pleasure. I'm super excited for this. The pleasure is ours, sir. Now, before we hand over the mic to you, could you share a bit about your journey and what inspires you in the world of finance? Uh, Being my journey, I'll put in very simple words that I've been in stock market since 2010. And मेरा objective जैसे आपने बताया था यहाँ पे is that I would want to reach the top 50 investors of the world. I want my name to be counted among names of Rakesh Anjumala, Warren Buffett, Peter Lynch, Howard Marks, Jim Rickards. And that's it. So we have started Goela School of Finance in 2014, and the objective is that we create that investment empowerment in this country where people can participate in the India's economic growth and they can benefit from it. Well, that's inspiring. Now let's delve into the heart of matter. Parth, over to you for the first question. Absolutely. हर सर आई होप आई विश अगर हम ऑफलाइन मिले होते तो हलवा सेरेमनी के साथ एक डिस्कशन चालू कर पाते बट Nice, nice. since that is not possible, let's speak about budget only. I would like to start by asking your take on yesterday's budget, given your wealth of experience. Apart पहले तो I'm very pleasantly surprised that you know about the halwa ceremony. बहुत लोगों को पता नहीं होता उसके बारे में. But I'm very happy that you know it. Yeah, for me, this budget was very important. People are saying being it an interim budget, right? तो इसका इतनी significance नहीं है, वो नहीं है, but है. Why? Because according to the exit polls and everything, if we have a high probability that the Modi government will resume power. Again, anything can happen, but the probability is pretty high. So when they resume power, they are not going to take a U-turn of the interim budget कि नहीं अब हम कुछ नया start करने वाले हैं. So this is why this budget is so important because they are just going to build on it. And for specifically investors, where one is looking where which sector to get inclined to, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना चाहिए. This budget is extremely crucial. So, since the market has moved a bit sideways after the budget, Right. what do you think the market scenario can be for this week, considering the introduction of 10 IPOs and Fed interest rate? Hmm. या सी इसको सिंपल लेना है मार्केट साइडवेज अपवर्ड्स बजट से तो फर्क पड़ता ही नहीं है आई टेल यू इट इन द सच अ शॉर्ट रन इट इज जस्ट अबाउट एक्सपेक्टेशंस ठीक है जैसे आई टेल यू बचपन में राइट तो वो वी सीन दोस कार्टून फिल्म राइट जहाँ पे 3 टायर केक्स होते हैं वन केक उसके ऊपर एक और उसके ऊपर
And of course, as Indians, we've never seen it. मतलब being in Delhi, मैंने बचपन के भी देखा था, and it was like man fascination कि मुझे पापा बर्थडे पे वही केक काटना है. My dad went outside. Right, he could not legit find it, and I'm talking 2012, नहीं 2002 3 मतलब at least that old. He could not find that multi-tier cake. तो वो बहुत fancy cake लेके आया. Was I happy? Not at all. Jabki, the interesting thing is, if my father had got that fancy cake anytime else, I would be like extremely happy, right? But उस समय मैं happy था because my expectations were very high. तो जो stock markets you're saying that budget के वजह sideways गया, वो expectations की बात है. You take out SGFC, quarterly results, SGFC is in profit, अच्छा कर रहा है, but it is not up to the expectations what investors were expecting कि कितने SGFC के profits होने चाहिए, उस level पे नहीं थे. Stock plummeted if you have been following the markets. So it doesn't matter, but exactly stock market कहाँ move कर रहा है doesn't show in a very short term कि budget अच्छा है या खराब है, and that's it. It's all short term. It's all about sentiment, nothing else. सर, तो इंटरिम बजट को रेलेवेंस में रखते हुए हम क्या क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं फ्रॉम द फाइनल बजट? एक्सपेक्टेशन ये होगी दैट इसी बजट पे बिल्ड ऑन होगा. द मोदी गवर्नमेंट विल बिल्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. टूरिज्म पे बहुत हैवी फोकस किया है, अफोर्डेबल हाउसिंग में क्या है, एग्रीकल्चर में क्या है, डिफेंस में क्या है. सो डेफिनेटली ऑल दीज सेक्टर्स को बिल्ड किया जाएगा. अब इसमें तो इंटरेस्टिंग चीज ये है इज दैट कि इफ यू लुक इनटू द इकोनॉमिक्स, इंडिया में फिस्कल डेफिसिट है. फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार का खर्चा इज मोर, इनकम इज लेस, राइट? इंडिया का टारगेट है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट बाय 2026 शुड बी बिलो 4.5% ऑफ जीडीपी, है ना? इज इट गेटिंग टू jargonish or do you want me to simplify it down? नो सर, इट्स No, sir, it's perfect. ठीक है. तो बेसिकली 4.5% जीडीपी का हमने एक्स्ट्रा एक्सपेंस उठा रखा है, जबकि हमारे पास इनकम है ही नहीं उसकी. एंड इफ वी सी द करंट फिस्कल डेफिसिट ना, शायद हम वो टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे. अब या तो ये हो रहा है कि या तो दिस गवर्नमेंट विल रियली पुश अप द टैक्सेस, बिकॉज डेफिसिट कम करना है तो गवर्नमेंट को इनकम उठानी पड़ेगी, तो टैक्सेस बढ़ाने पड़ सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच लास्ट ईयर हमारे टैक्सेस बढ़ सकते हैं 2025 में. आई डोंट थिंक इस साल ज्यादा उसका इफेक्ट आएगा. तो दैट इज वन कंसर्न जो इकोनॉमिस्ट की काफी वरी है, दैट हाउ इज दिस गवर्नमेंट गोइंग टू मीट इट्स फिस्कल डेफिसिट टारगेट. दैट इज वन थिंग. तो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि इस यूनियन बजट में वो टैक्स के बारे में क्या बात करते हैं, वो डेफिसिट क्या कर रहे हैं. आई विल टेल यू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि इंडिया में ना रिसेंटली व्हाट दिस गवर्नमेंट हैज डन इज दैट कि जितना टैक्स बढ़ाया है उससे ज्यादा टैक्स कलेक्शन सिस्टम बेटर कर दिए, एंड आवर टैक्स कलेक्शन हैव बीन हाईएस्ट, बी इट जीएसटी, इनकम टैक्स, एवरीथिंग. तो सिर्फ उसके चक्कर में ही अपना डेफिसिट भी कम हो गया. तो इट्स नॉट ओनली कि डेफिसिट कम होगा टैक्स बढ़ा के, टैक्स सिस्टम्स को एफिशिएंट बना के टू मेक श्योर एवरीवन इज कमिंग ऑन अ टैक्स ब्रैकेट एंड दे आर पेइंग टैक्स, उससे भी बहुत बेनिफिट पड़ सकता है. सर, बिल्डिंग ऑन योर आंसर ओनली, हमने पास में ऐसे देख रखे जैसे इनकम टैक्स रिलीफ मिलता है नॉर्मली जनरल इलेक्शंस ईयर के बाद, बट इस साल हमें कोई ऐसा हमने कोई सिनेरियो देखा नहीं. इस पे आगे आपको लगता है आगे वाले उसमें जब बजट आएगा उसमें कोई रिलीफ वगैरह होगा? डिफिकल्ट, मतलब आई फील जैसे फिस्कल डेफिसिट चल रहा है उसके हिसाब से तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गए. एंड हाँ, बट इंडियंस का वो है ना, हर बजट में उम्मीद के साथ बैठते हैं ना कि वो एक उम्मीद है कि कम हो जाएगा, एंड होता तो नहीं है. एंड आई अंडरस्टैंड कि पीपल गेट एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड, बी इट इन अ जॉब और बिजनेस, कि यार कुछ एग्जाम्पशन नहीं मिल रहा, व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग फॉर अस. बट इफ यू लुक एट द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, आई थिंक दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. टैक्स तो थोड़ा बढ़ना ही पड़ेगा विद टाइम एंड कमिंग एट पावर. अगेन देयर आर टू थ्योरीज. देयर वन थ्योरी जहाँ पे लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट ही मत करवाओ, एंड लुक एट द इकोनॉमी हाउ इट रशेस. दैट इज वन line of belief. India is in another line of belief. Okay. So, shifting from our topic a bit, जैसे हमारा बजट पे था, थोड़ा इन्वेस्टिंग की तरफ आते हैं या फिर लोगों को थोड़ा अपने कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं. मेरा एक था कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, Right. बट एक्सपीरियंस नहीं है लोगों को मार्केट की. मार्केट एक्सपीरियंस भी काफी डिमांड करता है. आप Right. क्या सजेस्ट करोगे, इधर टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन इक्विटी और इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स फॉर द स्टूडेंट्स? See, for the starting off, you should invest in mutual funds.
ठीक है, सी अगेन, इन्वेस्टिंग में क्या आप डायरेक्टली पैसा इक्विटी में डाल रहे हो, म्यूचुअल फंड में क्या है, यू आर गिविंग योर मनी टू अ फंड मैनेजर, ही इज पार्किंग इन दैट मनी ना इक्विटी, assuming you bought a equity mutual fund, so indirectly आप इक्विटी में ही कर रहे हो. Yeah, for me stock markets is as simple and as complicated that you want it to be, right? So for me the most simplest thing would be park your money in index and consistent compounders. जैसे कि I'll tell you a very interesting thing. ये recently we were doing an experiment, right? तो हमने random लोगों से पूछे थे कि अच्छा name us 5 companies which you feel will be still relevant in 2050. 5 companies, Indian companies. तो किसी ने बोल दिया Reliance, लोगों ने बोला TCS, लोगों ने बोला Asian Paints and all the big names, right? L&T, HDFC, all these stocks. And reality is that they will still be relevant and their stock will definitely go up. They are the consistent compounders. बट उसमें इन्वेस्ट करेगा नहीं. उसमें लोगों को लगता है कि यार तो स्टॉक बहुत महंगा है, या उनको लगता है यार ये और कितना ऊपर चढ़ेगा. एप्पल कहाँ से कहाँ पहुंच गया यार, इट वाज अ $1 ट्रिलियन कंपनी, अब तो 2-3 ट्रिलियन के ऊपर चला गया. सो देयर इज द ओनली लिमिटेशन फैक्टर इज आवर इमेजिनेशन, राइट? सो इन्वेस्टिंग को सिंपल रखना है. बेस्ट तो यही है दैट यू इन्वेस्ट इन इंडेक्स, you invest in consistent compounders like TCS and Tata Lexi and these strong powerful stocks. And otherwise, if you still feel that the mutual fund can help you to generate that discipline, but mutual funds and nobody gets rich. It's think about it. Or actually, I want you to go and ask around your parents, family. जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है 2018 से 2019 से, उनका पोर्टफोलियो की पूरी एक्सआईआर मतलब जस्ट सी द एंटायर रिटर्न्स, कंपेयर इट टू द इंडेक्स कि 2-3 साल में इंडेक्स कितना ऊपर चढ़ गया. And I can assure you that more than 87% of the cases, that mutual fund portfolio will underperform. तो क्या फायदा हुआ भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का when I'm paying extra expense ratio, I'm taking that, and this is the fact. And this experiment जो मैं बता रहा हूँ, it's not something new. Even I think Warren Buffett in letter to shareholders जो Berkshire Hathaway में डालते हैं वो, उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने बेट लगाए थे एक बार कि फंड मैनेजर से कि 10 साल के लिए you invest in whatever you want, active managed funds, I will only invest in S&P 500, and he won by a huge margin returns wise end में. So yeah, investing is as simple and as complicated as one would like it to be. So like being a student, a person should focus only on long-term investing, yeah, he or she could consider aggressive investing too in the form of intraday or short selling. यार इंटरडे शॉर्ट सेलिंग से बाद किसने पैसे कमाए आज तक? मुझे मार्केट्स में 14 साल हो गए, राइट? 2010 आई लेजर हैव सीन नो वन अराउंड मी जो 3 साल से ज्यादा इंडेक्स की रिटर्न्स को बीट कर रहा है. मैंने देखा ही नहीं आज तक. मुझे दिखा देना अगर आपको. एंड आई एम टॉकिंग, आई नो लॉट ऑफ इन द कंटेंट क्रिएशन वर्ल्ड आल्सो. मैंने बस इंटरनेट पे देखा. एंड सी बिकॉज ट्रेडिंग is okay till one point, but if you're a good trader you will never be a trader for long because तुम्हें पता चलेगा कि यार असली पैसा सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ही है. and I know even I personally got attracted to the market कि भाई मुझे इंटरडे करना है, डबल करना है पैसा, राइट? जब मैंने फ्यूचर ऑप्शन डिस्कवर किया, I was like कि भाई what did I just find, this is so easy, I can mint money like anything when I was 18 or 19. but वो ये slowly and steadily you realize. so my advice would be that start investing first. एक बार सेट कर लो कि हर महीने यहाँ पैसे डालने, काम खत्म. फिर ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट करना है, कर लो विद स्मॉल अमाउंट. बट अगर आप लॉजिकली अपने आप को ट्रैक करोगे, यू विल एक्चुअली सी दैट यू आर नॉट प्रॉफिटेबल. आई बिलीव दैट इफ मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स इन इंडिया उन्होंने एक्चुअली अपने आप को ट्रैक कर लिया ना, क्योंकि क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या उनका CAGR है कंपेयर टू द मार्केट, 90% ऑफ देम विल लीव ट्रेडिंग आफ्टर दैट. इट कैन बी सो बैड. जो फैक्ट्स हमारे सामने है, सभी रिपोर्ट आ रखी है, हर रिपोर्ट आ रखी है, एंड इट्स अ वर्ल्ड वाइड थिंग, इट्स नॉट ओनली अ इंडियन थिंग. सर हमारे कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं ऑडियंस से. एक अरुण ने डाल रखा है, हाउ शुड आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक एज अ स्टूडेंट? As a student, yeah, demat account you can open like a bank account, open in any broker. ठीक है, I don't think you should waste time कि broker 20 रुपए सस्ता है महंगा है, just open anywhere, right? क्योंकि स्टार्टिंग में वैसे भी ज्यादा इन्वेस्ट करोगे नहीं.
तो सबसे पहली चीज वो है, एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स. कीप इट वेरी सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. जस्ट स्टार्ट पुटिंग सम मनी इन स्टॉक्स लाइक एचडीएफसी, जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर हैं, जो आपको खुद लग रहा है कि 5 साल बाद ये कंपनी टिकी रहेंगी, लाइक ब्रिटानिया, लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी. There's several. That's it. That's how you start. So, मेरा क्वेश्चन है, why is it said that one should prefer equity trading over future and option taking account of the risk and management? जैसा आपने पहले बताया कि मिंट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन तब भी काफी सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं इसमें. Yes, see, सबसे पहली चीज, again, future options is a high risk game. I'll tell you and I'll tell you why people lose in future options. Right? If you follow future options consistently, तमीज से, and which is again very easier said than done, तो फिर you can manage to get decent returns. Right? Problem क्या होती है? It is an extremely high risk game. You need to have a lot of money on the table. Right? If you don't have that, you won't be able to survive. मतलब it's like लोग फ्यूचर ऑप्शन में आ जाते हैं 2-3 लाख के साथ. Right? It's like when with a portfolio of 2-3 lakhs, you're dealing in future options. It's like you're a boxer and you're very aggressive. You're punching, but one punch it touches you, you're out. Can you ever win a match? So you have to have that risk appetite in future now, and that is what majority of the people in this country don't have, and that is why they shouldn't enter future now. कम से कम 15-20 लाख होने ही चाहिए आपके पास अगर आप अच्छे से करना चाहते हो, and that too also I'm talking on a very minimal basis. That is why people take the hit. And Okay, sir. Thank you. सर जब से बजट लॉन्च हुआ है आईआरएफसी की धूम मची हुई है. अभी हमारा कमेंट बिल्कुल. सेक्शन भी आईआरएफसी करे जा रहा है. व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? Yeah, definitely. I feel IRFC. बताओ, I'll tell you an interesting part. IRFC का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 99.46%. राइट? द रीजन इज बिकॉज उनका बिजनेस वो ब्रोकर टाइप है ना, कि बस वो पैसा खट्टा क्या, ये रेंज क्या, दे डोंट हैव टू पुट कॉस्ट फ्रॉम द साइड. तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स परफेक्ट. और आईआरएफसी तो अब आई थिंक रेलवे मिनिस्ट्री बात भी होती है दैट दे वांट टू एक्सटेंड टू अदर प्रोजेक्ट्स आल्सो, नॉट ओनली रेलवेज. सो आई डेफिनेटली फील आने वाले टाइम के लिए फ्रॉम शॉर्ट टू मीडियम टर्म आईआरएफसी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक. गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है. बट would I want to hold it extreme long term? मतलब when I say long term, I mean at least 7-8 years. No. I feel as of now, currently, railways unfortunately is one of the most inefficient things in our country. Right? Tickets नहीं मिलते, and it's मतलब this railways is so huge. There are so many verticals to it. So it's unfair for us to point कि इसकी गलती है, railways अच्छा नहीं है. It's lot of thing, right? So for me, अगर कोई चीज inefficient है, the private bodies have to come in and make it efficient. As of now, this is the situation. So yes, IRFC short to medium term, I think it's very, very powerful. But would I want to hold it for the very long term? सर तो अगर सिंपल शब्दों में अगर डिकोड करा जाए, एक कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख के हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर वी शुड बाय इट्स स्टॉक और नॉट? You seen Shark Tank? Yes, sir. Yes, sir. When you are in stock markets, you are the shark. Companies come and present them to you. जैसे शार्क टैंक में कॉमन लॉजिक से वी आस्क क्वेश्चन, राइट? एंड वी थिंक यार ये कंपनी घर पे बैठे बैठे ये कंपनी फेल होगी, अरे ये कंपनी. सेम थिंग इन स्टॉक मार्केट्स. there's no, it's as easy actually, right? You just need to think that you're a shark, you want to invest in that company, will that business do well or not? Then you will automatically ask the right and relevant questions, and that's it. जैसे I'll tell you about Jio Financial Services, right? अभी JFS का बहुत वो चल रहा है, क्रेज चल रहा है. अब जब JFS इतनी यूनिक सिचुएशन है बिकॉज वैल्यूएशन उसकी अच्छी है, हाई है, बट इट हैज नो नंबर्स टू बैक इट अप, क्योंकि उनका ज्यादा बिजनेस शुरू नहीं हुआ है. इस क्वार्टरली रिपोर्ट जो रिजल्ट आई थी, इस सेट की जो व्हाट दे मेंशन कि देव मेड कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, मतलब फ्रिज और एसी, वॉशिंग मशीन, सब पे लोन्स, एंड ऑल्सो इन पर्सनल लोन्स में आ रहे हैं. And of course, they have My Jio app, they have network, they have marketing, they've got everything. So distribution channels are very sorted for them. It's backed up by Ambani's. Would you want to invest in it? There are no numbers to it. But उम्मीद बहुत ज्यादा है. कोई आदमी बोलेगा हाँ. If you ask me, I will say
आई विल कीप दैट इन माई माइंड, बट जब तक नंबर्स नहीं होंगे बैकअप मैं नहीं जाऊंगा उसमें. तो इन्वेस्टिंग ना इट्स लाइक when you watch cricket, right? एक द्रविड है, सेवाग है, विराट कोहली है, and you might like one style better than the other. And when you try to play cricket, बचपन में खेलते हैं, right? तो हम वही स्टाइल इमिडिएट करने की कोशिश करते हैं. लाइक कोई फुटबॉल खेलता है तो फुटबॉल में रोनाल्डो की तरह फ्री किक में खड़ा हो जाएगा, वो लगने नहीं वाली, बट वो खड़ा हो जाएगा फ्री किक में रोनाल्डो की तरह. यू टेकन एक दो स्टेप पीछे लेके. तो and with time you develop your own batting style. With time you develop your own investing style कि आप कितने रिस्क से कंफर्टेबल हो, कितने नहीं हो कंफर्टेबल. So this is how it is. It's a journey. But core उसका यही है. You need to invest in a good business. कभी कभी numbers will back it up. कभी कभी numbers will not back it up. उसकी projection बहुत high होगी, but numbers cannot back it up. So you need to make a call as a person, जैसा आपका investing style है, that whether you would want to invest in it or not. That's the idea. सर मेरा एक क्वेश्चन है पर्सनली, जैसे अभी हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स कैसे लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में या इक्विटी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए. वन सबसे एक मेन आ जाता है कि उनको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो उनको कौन कौन से एलिमेंट्स देखने चाहिए, चार्ट्स देखने चाहिए, रीडिंग स्टेटमेंट्स, क्या आपके हिसाब से क्या अच्छा रहेगा, किस बेस पे हम उनको जज कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए फॉर लॉन्ग टर्म. ठीक, आपको पता है ये पीटर लिंच का कोट है, अ गुड इन्वेस्टर इज दैट इन्वेस्टर हु फॉरगेट्स हिज ट्रेडिंग अकाउंट पासवर्ड. राइट, दैट आप देखो ही ना. तो चार्ट्स देखना वगैरह तो गोज आउट ऑफ द क्वेश्चन. फ्यूचर ऑप्शन, सॉरी, इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट चार्ट्स, इट्स अबाउट फाइंडिंग वैल्यू. तो उसके लिए यू डोंट नीड टू सी अ चार्ट. तो या बेसिक स्ट्रक्चर अगेन इट नीड्स टू बी अ गुड बिजनेस. अब जैसे बिजनेस में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है टॉप लाइन और बॉटम लाइन. ठीक है, हेडविंड्स और क्या कहते हैं टेलविंड्स. टेलविंड्स इज द सेक्टर पुश. तो आईआरएफसी में भी क्या हो रहा है, इज इट द हेडविंड्स? इट इज द टेलविंड्स, बिकॉज गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है भाई, इतना पुश कर रही है ऊपर, राइट? सुजलॉन, इज इट द हेडविंड्स? इज द मैनेजमेंट एक्सीलेंट? नहीं, इट्स द टेलविंड्स, बिकॉज उनको मिल गए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, विंड एनर्जी, विंड टर्बाइंस, दे हैपन टू बी द मोनोपोली एंड देयर देयर, डेट ही खत्म कर दिया उन्होंने, पैसे प्राइवेट इक्विटी उठा ली. So you need to choose a company that has headwinds and tailwinds. ऐसी क्या कंपनी, जैसे I'll tell you a very strong thing. I feel जैसे, अब बहुत सिंपल चीज है. अब फॉर अ एफएमसीजी बिजनेस, ठीक है, सिंपल बिजनेस लेते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये बिस्किट, शैम्पू, ये सब हो गया. अब फॉर एनी एफएमसीजी कंपनी, व्हाट इज द ओनली थिंग दैट दे नीड टू डू वेरी वेल, तभी वो सेक्टर चलेगा? इट इज डिस्ट्रीब्यूशन. ना मैं किराने की दुकान में जाऊंगा, मुझे ब्रिटानिया का बॉर्बन खाना है, बर्बन बिस्किट खाना है, तो ब्रिटानिया का नहीं है तो वो मुझे अनमोल का दे देगा या प्रिया गोल्ड का, और मैं ले भी लूंगा, राइट? तो आपको बिजनेस समझ आना चाहिए. इफ पीपल आर इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस इन स्पेशलिटी केमिकल्स, और उनको समझ आ कि वो केमिकल्स क्या, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. आप तुम कभी लॉन्ग टर्म उसमें टिक ही नहीं सकते. दैट्स द की ऑफ इट. A lot of times, and this is the problem that I've been facing, is that अब जैसे YouTube में we put out research and everything, and no matter how many disclaimers we give, I know it that people buy that stock, and ये भी मुझे पता है कि वो they will never be able to earn a profit because उन्होंने मोटिवेशन में ले लिया. They don't understand the business, और उन्होंने खुद effort unfortunately डाला ही नहीं है. जब वो स्टॉक नीचे करेक्ट करेगा, would they have the capacity to hold it? नहीं. तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दे आर डूइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट एक्चुअलिटी में दे जस्ट ट्रेडिंग. और बहुत केस में तो इट्स नॉट इवन ट्रेडिंग, इट इज जस्ट सट्टा. एंड थिंक अबाउट इट, व्हाट इज अ ट्रेड, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट? व्हेन योर रीजन फॉर बाइंग एंड सेलिंग शुड बी द सेम. अगर मैंने आरएसआई देख के लिया भाई, मैं आरएसआई देख के ही काटूंगा अपना, ठीक है? मैंने अपना फिबोनाची देखा तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट देख के ही आई सेल. इफ बाइंग का रीजन है यूट्यूब वीडियो, सेलिंग का रीजन है कि गट फीलिंग बोल रही है कि मार्केट नीचे गिर गया है या और ऊपर नहीं चढ़ेगा, तो इज देयर एनी लॉजिक टू इट? नहीं. तो एक तो की जो मुझे बहुत मैटर करती है ना, या रीजन फॉर बाइंग एंड सेलिंग शुड बी सेम. तो अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्ड किया है, 5 साल के लिए है, तो 5 साल से पहले मत बेचो. अगर आपने आईपीओ सिर्फ लिस्टिंग डे गेन के लिए लिया है, तो उसको लिस्टिंग डे पे बेचो, चाहे प्रॉफिट और लॉस हो. आधे लोग एलआईसी में क्यों हैं?
बिकॉज लिस्टिंग देख ले लिया था, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं हुआ, रखा हुआ है, नुकसान में बेचा नहीं, रीजन फॉर बाइंग सेलिंग सेम है नहीं। अब ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि इट इज गिविंग यू रीजंस कि नहीं एलआईसी अच्छा स्टॉक है, एलआईसी अच्छा स्टॉक है। क्योंकि जैसे एक स्टॉक मार्केट में बड़ा कॉमन, एक रेप्टाइल ब्रेन होता है, राइट? यू ओनली टेक दोस इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए। तो अगर गाड़ी चला रहे हो एंड यू बॉट अ न्यू कार, तो आपको वही गाड़ी हर जगह दिखती रहेगी, देखो यार मेरी गाड़ी कितनी बढ़िया है, राइट? टू जस्टिफाई इट इन योर माइंड अगेन एंड अगेन। सेम स्टॉक मार्केट्स, अगर किसी ने एलआईसी में इन्वेस्ट कर रखा है, एग्जाम्पल, ही विल अपने दिमाग में हिल प्रोजेक्ट द पॉजिटिव्स टू बी मैसिव, और चाहे नेगेटिव्स कितने भी बड़े हो वो देखेगा भी नहीं। इट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, यू कैन ओनली एक्सपीरियंस इट एंड फिर यू कैन करेक्ट इट विद टाइम। तो या होल्ड अ गुड बिजनेस, जो बिजनेस आपको समझ आता हो, एंड योर फॉर रीजन फॉर बाइंग एंड सेलिंग शुड बी द सेम, नथिंग एल्स। So in the option pricing model, कौन से factors ऐसे हैं जो influence करते हैं value of an option? Like how can traders use the information of decisions regarding option geeks like theta, delta, gamma, ATM, OTM and all? Yes, see, information लेने को तो there are lot of variables, there are lot of things. First, you need to find a system जो आपको ठीक लगे, right? If suppose the strategy is too complicated for anyone to understand, और हो सकता है Parth, you would find it very easy, I would find it extremely complicated, right? In that situation, that strategy is not for me. मैं उसको कभी लंबा टेक ही नहीं पाऊंगा। तो सबसे पहली चीज, प्ले विद दोज वेरिएबल्स जिससे आप कंफर्टेबल हो। एंड इसका मतलब यही नहीं है कि स्टार्टिंग में बोल दो मैं अनकंफर्टेबल हूँ, ट्राई इट आउट, नहीं हो रहा तो फिर यू कैन चक इट। एंड फॉर मी यार, आई तो वुड जस्ट फोकस ऑन द टेक्निकल्स कि मुझे मेरा ग्राफ मुझे क्या दिखा रहा है, दैट्स इट। एंड फ्यूचर ऑप्शंस के लिए ना, देयर इज नो पॉइंट एज सच टू दैट यू स्टडिंग द न्यूज, यू ट्रैकिंग व्हाट इज हैपनिंग विद दिस एंड विद दैट, बिकॉज वो प्रोडिक्शन आप बना ही नहीं पाओगे। अब सपोज, और आई एम टेलिंग दिस विद एक्सपीरियंस, ये लगा लो आप इसका एक्सपीरियंस, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। ठीक है, लास्ट ईयर फेड वाज इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स, आर यू अवेयर ऑफ दिस? है ना? अब जब फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी भी नीचे आती है, बिकॉज यूएस इकोनॉमी विल स्लो डाउन, फिर वर्ल्ड इकोनॉमी विल, इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द एंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी, राइट? इस चक्कर में कि वो चेयरमैन आना, फॉर नेम ऑफ द फेड चेयर, तो ही सेड कि चलो मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाऊंगा फ्रॉम जून। लोगों ने शॉर्ट कर दिया, नहीं हुआ। एंड आई कैन गिव यू सेवरल केसेस लाइक दिस। सो न्यूज को देखिए प्रिडिक्ट करना इज एक्चुअली लक। मार्केट्स कैन बिहेव एनीवेयर, बट जस्ट फॉलो टेक्निकल्स एंड फॉलो द वेरिएबल्स दैट वन इज कंफर्टेबल विद। अगर आपको बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा है, इट इज नॉट फॉर यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम लोग बहुत कुछ मार्केट से जब आप फॉलो करते हो, सीखते हो, काफी कुछ पता चलता है। सो द डिसीजन दैट सिग्निफाइज योर इन्फ्लुएंस अप्रोच फॉर द स्टॉक मार्केट, लेसन्स जो आपको स्टॉक मार्केट से मिले हैं, आप इनको बता सकते हैं डिटेल? ये तोशक ने पूछा हुआ है। फिर से मुझसे पूछो क्वेश्चन, मतलब एज इन द बिगेस्ट लेसन इन स्टॉक मार्केट। सो तोशक ने लिखा है, share a memorable early investment decision that signify your influence for the approach of stock market. What lesson did you learn from it? राइट, आई टेक यू, किसका क्वेश्चन है? तोशक ने पूछा हुआ सर। तोशक है, तोशक। I'll tell you incidents of DHFL, Diwan Housing Loan Finance. I don't know how many people are aware of it. तो 2018-19 में I was actively, होता ना एक स्टॉक जिस पे तो आप लगे रहते हो, बाय सेल वगैरह, एक दो स्टॉक होते हैं रेडार में, तो DHFL was that for me and I was convinced कि इन द NBFC जोन इससे कोई बेटर है नहीं, जो समय फंडामेंटली फैक्ट भी था। एंड द मोदी गवर्नमेंट हैज बीन पुशिंग अफोर्डेबल हाउसिंग सिंस 2016, तो हाउसिंग फाइनेंस तो बढ़ना ही है। एंड इसलिए एनबीएफसीज में आई वाज सुपर ऑप्टिमिस्टिक कि भाई ये ही है, यही करना है। तो डीएचएफएल में पहले तो आई केम आउट विद अ वेरी गुड प्रॉफिट, 150-200% प्रॉफिट आई केम आउट। वो और चढ़ता गया, और चढ़ता गया। और अगर आपने इधर से इधर बेचा, बट वो बेचने के बाद स्टॉक और ऊपर चला गया, तो खुशी खुशी कुछ नहीं होती, ठीक है? वो फिर वो कुछ भी खुशी नहीं होती है। दूसरों बोलेंगे कि अरे यार व्हाई आर यू हैप्पी, बट यू नो यू मिस्ड इट, वो अंदर से नहीं हो पाता।
तो फिर वो चलता गया, फिर स्टैग फेज में आया, आई इन्वेस्टेड इन DHFL अगेन। अचानक से न्यूज आ गई कि IL&FS क्राइसिस, फिर DHFL का पूरा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि वो फैमिली थी, दे वर इनटू अ लॉट ऑफ सिचुएशन, हल्की हल्की साइड टू ओपन अप। मैं क्या बोला कि नहीं, बेकार है, मैं टिका रहूंगा, अरे लॉन्ग टर्म, अरे वो, अरे ये, अरे वो। तो यू एंटर एज अ ट्रेडर, यू बिकम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और मैं था कि नहीं भाई, ये बिकॉज मेरा रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि DHFL अच्छा स्टॉक नहीं है। मैं सिर्फ पॉजिटिव देखे जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि क्या बात करो। एंड economy में there are always pros and cons, right? At the same time, using the same facts, I can make you optimistic in the economy. Using the same facts, I can make you pessimistic also. ठीक है, जैसे कि अगर let's say simple example, rupee is decreasing in terms of dollar, तो मैं अच्छा क्या बताऊंगा, ये तो अच्छा है, होगा क्या, FIs will invest more in a country, and वो IT कंपनी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा, दिस इज द बेटर, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट होगी, जो गवर्नमेंट FDI बोल रही है वो अचीव होगा। नेगेटिव तो आई कैन टेल यू दैट इज, तो हर फैक्ट को आप पॉजिटिव नेगेटिव देख सकते हो, ये इकोनॉमिक्स की ब्यूटी है। मैं DHFL में लगा कि नहीं, ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, जब तक मेरा पोर्टफोलियो 8-9% नहीं रह गया, एंड इट वाज कंसिडरेबल अमाउंट दैट आई पुट इन DHFL इन माय पोर्टफोलियो, तब तक मैं हार मारने को रेडी नहीं था। वैसे हार मारने को तो मैं उसमें भी रेडी नहीं था, वो आई थिंक फिर बहुत मेरा इत्या, वी जस्ट टोल्ड अ ब्रोकर हम जा रहे हैं छुट्टी पे, बस स्टॉक क्लियर कर देना हमारे, हमें चाहिए नहीं। तो वही था आई थिंक पहले बिगेस्ट लेसन, दैट स्टॉक मार्केट ऑन बुक्स एंड पेपर्स इजी, जब खुद का हार्ड अर्न मनी लगा होता है ना, एंड आपके स्टॉक के साथ कोई दिक्कत आती है, खराब। और मैं ना स्टॉक से इमोशनली अटैच हो गया था। आई टुक DHFL एज माई ईगो, है ना, मेल ईगो तो हमें पता ही कितनी फ्रेजाइल होती है, उसमें स्टॉक ईगो डाल दी तब तो खत्म। तो बाद में आई रियलाइज दैट रेस में मैं अपने घोड़े से प्यार नहीं करूंगा, मुझे वो घोड़ा परफॉर्म के लिए चाहिए। रेस ट्रैक के बाहर मैं जितना प्यार करूं, इमोशनली कनेक्ट हूं, दैट्स फाइन। तो दैट वाज द बिगेस्ट लेसन, दैट डोंट गेट टू इमोशनली कनेक्टेड विद योर स्टॉक्स, उसको अपनी ईगो में मत लो, वरना you won't be able to do that balanced mind decision taking. That is one very major thing I learned. So मैं एक और छोटा क्वेश्चन, what is the your best investment decision of your life and one investment mistake you're willing as a beginner जो beginner avoid कर सके? My best investment decision is the decision that I will be taking next, because every time I'll be just better and better and better. And just I'll tell you right now, I am very very optimistic on defense. So I've been investing in Hindustan Aeronautics since the last 6 months, and it's giving fantastic returns. Defense, I'm sure it's going to do very very well. So yeah, what was the second part of the question? A mistake a beginner should avoid. A mistake a beginner should avoid is that actually he cannot avoid, and irrespective of your age, I'll tell you what the problem is, but you cannot avoid it. No one can avoid arrogance, ego. जब आदमी मार्केट्स में आता है ना, उसको यही लगता है भगवान मैं ही हूँ। मुझे भी सही लगता था, राइट? तो आई थिंक कि अबे ये क्या है, ये दे कांट इवन गेट दिस रिटर्न, टेक्निकल इतना आसान तो है, करना क्या है, बाय सेल, ये सेल। बिकॉज व्हेन यू एंटर स्टॉक मार्केट इज सेक्सी, राइट? इट्स ग्लैमरस, यू फील कि भाई यू कैन ओन द वर्ल्ड। वो फिर टाइम ही रियलिटी में हिट करता है। और irrespective of your age, irrespective of how much money you have, how much educationally qualified you are, स्टॉक मार्केट में एंटर करते नहीं एरोगेंस से जाता, साइकिल से ऑफिस आता था और करोड़ों की बातें करते थे। करोड़ों से बातें हम कब नहीं करते थे, सिर्फ करोड़ों की बातें, आज इतने करोड़ छापेंगे, आज ये करेंगे, सिर्फ पेनी स्टॉक्स। उस समय व्हाट्सएप वाज जस्ट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड, तो व्हाट्सएप पे ग्रुप था, एक फेसबुक में ग्रुप था, फेसबुक वाज रियली कूल दैट डेज। एंड आई समटाइम्स फील अशेम्ड कि मतलब समटाइम्स व्हाट आई शुड थिंक अबाउट कि यार वो इन्वेस्टर क्या है, इसको इतना भी नहीं पता, ये क्या है इतना भी नहीं पता। एंड एज टू क्वेश्चन माय फादर आल्सो, पापा आप इतने साल से मार्केट में हो, अभी तक तो यू शुड हैव बीन लाइक अ मल्टी फ्रिकिंग बिलियनर, राइट? बट वही है, मार्केट्स आपको औकात दिखाया था, वो एरोगेंट स्टेज आती है। तो इसलिए, और ये आप यूट्यूब पे देखते हो, यूट्यूब में देखना, अगर गो टू माय चैनल या किसी भी चैनल में, तो कमेंट बॉक्स में लिखा था, अरे ये क्या है, ये तो मैं डबल कर दूंगा एक हफ्ते में, क्या बकवास है, मैं लिख के दे रहा हूँ, ऐसे बहुत कमेंट्स आते हैं। उसको पढ़ के ही मुझे समझ आ जाता है कि ये बंदा उस स्टेज में है।
तो या तो आदमी एरोगेंट स्टेज से जो सबकी स्टार्ट होती है बैंकरप्ट होकर बाहर निकलता है, या फिर वो समझ के बाहर निकलता है. तो डिपेंड्स ऑन द पीपल यू सराउंड योर सेल्फ विद, एंड टू बी इन सेंसेस, नॉट टू कंपेयर योर रिटर्न विद अदर पीपल. राइट, क्रिप्टो करेंसी आपको याद है, एनएफटी याद है? Yes. People lost their shit, right? And people became cryptocurrency experts. महीने भर में सब 50 एक्सपर्ट्स तो मुझे ही पता है जो आ गए थे. एंड यही होती है कि they've understood stock market, they've understood crypto, and not stock market but anything, they've understood crypto, NFT is the future, they are not even willing to listen or understand. यही होती है arrogant stage. And actually you see a lot of NFT investors, crypto investors, they are much better investors now. जो टिके हुए हैं, अभी सर्वाइव कर रहे हैं, they'll be much better because उनको पता है कि ये arrogance attitude कोई सेंस है नहीं मार्केट्स में. विद टाइम उठाना होता है, दैट इज द बिगेस्ट थिंग, बट इसको अवॉइड करना बड़ा डिफिकल्ट है. सर जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था डिफेंस के बारे में बोलते हैं कि डिफेंस इज गोइंग टू ग्रो बहुत ज्यादा. इस बार जो हमारा इंटरम बजट आया था इसमें डिफेंस को सबसे ज्यादा एलोकेशंस हुआ है बजट का. आप इस पे थोड़ा कुछ बता सकते हैं? You see, India needs to be a geopolitical super, and I have a firm belief, इमांग, कि भारत बनेगा नंबर वन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. इसमें कोई डाउट ही नहीं है मुझे. बहुत दिक्कत है हमारे पास, ठीक है. आई कैन साउंड एक्सट्रीमली pompous and extreme optimism if I say this. We have democratic issues, we have government issues, right? And we have demographic issues, there are socialistic problems, बहुत सारे issues हैं. I think जैसे कुणाल शाह बोलते हैं, उनका एक बड़ा कोट था which stayed with me, that in India we want to be capitalist but our blood is of socialism. तो Yes. हर इंडियन में वो कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है ना, कि सोशलिस्ट वर्सेस कैपिटलिज्म, एक साइड ऑफ थिंग्स. तो for me, what was the question again? I think I lost my Defense पे आपका क्या टेक होगा जो अभी इंटरम बजट में हमारा Defense, yes. एलोकेशन तो किसी भी इकोनॉमी को सुपर पावर बनने के लिए ना, वो एक बड़ी कॉमन चीज है, इज दैट दे हैव मिलिट्री पावर, व्हिच इज सैड बट इट्स द रियलिटी. यूएसए, राइट, देन यूरोप, देन इजराइल, जापान, रशिया, दीज कंट्रीज हैव द मिलिट्री माइट, एंड दैट इज व्हेन की सुनी जाती है. जबकि रशिया की इकोनॉमी इज नॉट दैट ग्रेट बट सुनी जाती है बिकॉज दे हैव द मिलिट्री माइट. एंड फॉर इंडिया टू बिकम अ सुपर पावर, वो मिलिट्री माइट होना जरूरी है. एंड दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट दैट इंडिया शुड नॉट ओनली टेक डिफेंस फ्रॉम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, दे शुड एक्सपोर्ट इट. और जो आने वाले टाइम में लिखा भी है, बहुत रिपोर्ट्स में बोला है, फिच की रिपोर्ट ने, कि इंडिया विल बिकम द ड्रोन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया विल बिकम द एआई कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इफ वी कीप मूविंग ऑन विद दिस प्रोग्रेशन. बट दिस इज व्हाई डिफेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो यार, So then related to this, काफी predictions और discussions चल रहे हैं कि recession is going to come globally and even in national economy in recent years. Do you think is it really gonna come, and if it will, मतलब किस extent तक ये affect कर सकता है? ये स्टॉक मार्केट्स में ना, आई टेल द थिंग, यहाँ किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है, एंड इट्स अ फैक्ट, ठीक है. सो नोबडी नोज एनीथिंग. मार्केट्स 200 पॉइंट नीचे गिरा, रिसेशन, सब बर्बाद हो गया, हम खत्म हो जाएंगे. राइट, 2023 में dude, it was 4-5 times when everything was bull run, फिर everything was recession, India finished. फिर जैसी मार्केट, एंड दो दिन में मार्केट चढ़ता है, रिसेशन, मार्केट चढ़ता है, सॉरी, बुल रन, यूट्यूब वीडियो आना शुरू हो जाएंगी, यू विल गेट द पॉपअप्स, एंड पीपल फॉरगेट अबाउट इट. एक्चुअली अगर 2023 में एक काम करो, गो टू माय यूट्यूब चैनल, सी द थिंग, तो उसमें आपको दिख जाएंगी 4-5 वीडियोस, रिसेशन कमिंग, बुल रन कमिंग, रिसेशन कमिंग, बुल रन कमिंग. जस्ट मार्केट हल्का सा मूव करता है. तो ये सब मेरे साथ बातें सेंस ही नहीं बनती. बताओ, आई वाज हैविंग अ पॉडकास्ट विद सौरभ मुखर्जी. So he's written Coffee Can Investing, he's written Gurus of Chaos, Diamonds and Dust. I asked him this question कि आरबीआई का इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे उस समय जो भी सिचुएशन थी, रशिया यूक्रेन वॉर का टाइम था वो, तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, ये एक्सपेक्टिंग. ही टोल्ड मी कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, नाइदर आई वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन, बिकॉज ही सेड कि is that if investors really want to be profitable, they should stop reading the news, right? तभी वो, क्योंकि न्यूज पढ़ के वही रिसेशन आ गया, बुल रन आ गया, वो आ गया, खत्म हो जाएंगे. रिसेशन तो लोग 2023 से बोलते आ रहे हैं, 2021 से बोलते आ रहे हैं. एंड
देयर आर टर्न, जैसे नो इकोनॉमिस्ट कैन टेल यू द फ्यूचर. कुछ इकोनॉमिस्ट होते हैं जो थोड़े से हमेशा नेगेटिव जोन में ही रहते हैं, मतलब नेगेटिव इज रॉन्ग वर्ड, पेसिमिस्टिक रहते हैं, राइट. जैसे इफ आई टेल यू अबाउट Raghuram Rajan, he's one of the best economists, and he's my idol, complete idol. And I'll tell you fact: 2008 crisis, Raghuram Rajan predicted, but nobody else believed him. And when it happened, everyone knew. And he's someone who's always right. Most of the time, he's right. But he was also talking about the recession. It didn't come. फिर जब अडानी हिंडलबर्ग क्राइसिस केम, तब दोबारा कॉन्सेशन आया. इट डिडंट कम. क्या रिसेशन कभी नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा, और आना चाहिए. ज्यादा बुल चला गया तो फिर इट्स वेरी ओवर एग्जैजरेटेड. देयर हैज टू बी अ बैलेंस. आना चाहिए. बट फॉर मी इट डजंट बॉदर मी, बिकॉज आई एम हियर फॉर द लॉन्ग रन. स्टॉक मार्केट T20 मैच थोड़ी है. 2 हफ्ते मार्केट किधर है, 5 हफ्ते में किधर है. ये टेस्ट क्रिकेट है, और मैं यहाँ टिकने के लिए आया हूं. मेक श्योर जो भी मेरे साथ है चलो वो टिके. बिकॉज अगर आप स्टॉक मार्केट में टिक जाते हो, you will come out the victor, and that's the extreme high probability. That's why. तो क्या ये कहना सही रहेगा कि स्टॉक मार्केट इमोशनली ड्रिवन ज्यादा है, रेदर लाइक फाइनेंशियली ड्रिवन बाद में आता है, बट इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर एक बात करी जाए तो इमोशनल ज्यादा खेलते हैं यहाँ पे, ज्यादा ड्राइव करते हैं लोगों को. हर स्टॉक मार्केट यार, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी होती है. इमोशनल बायस सबका सेम है. अगर मैं कोई फेक सांप, ठीक है, मैंने ऐसे सपोज पात आप ऐसे फ्रैंकली फेंका, आप डर जाओगे, राइट. 2 दिन बाद एन इमोशनल थिंग, इट्स नॉट अ IQ थिंग. तो ये तो फैक्ट भी है. द मोर एजुकेशनली क्वालिफाइड यू आर, द लेस प्रोबेबल यू आर टू सक्सीड इन स्टॉक मार्केट्स. आप देख लोगे आपके मामा चाचा जो बहुत रिस्पेक्टेड, जिनको यू रियली रिस्पेक्ट, राइट, एजुकेशन वाइज, IIM, PhD, IIT, वो हमेशा मार्केट्स को जुआ ही बोलेंगे. हमेशा जो जो CA वाले चाचा ताऊ जी हैं वो जुआ ही बोलेंगे. एंड मोस्ट ऑफ द ग्रेट इन्वेस्टर्स हु हैव ग्रेट डिग्रीज, वो तो खुद बोलते हैं डिग्री का फायदा नहीं है. कोर्स सेम है यार. इट्स लाइक यू वांट टू लूज वेट, क्या चाहिए? कैलोरी डेफिसिट चाहिए, राइट. खाना खाओ कम, बर्न करो ज्यादा, सिंपल. अब उसको तुम योगा की थीम ले आओ, कोई इंटरमिटेंट डाइटिंग की थीम ले आता है, कोई इसकी थीम, कोई कीटो की थीम. नॉट सेइंग एनीवन इज बैड और गुड, बट इट्स द थीम्स. बट कोर सेम है. सेम है स्टॉक मार्केट्स. यहाँ पे आइसक्रीम फ्लेवर की तरह ना हर रोज नई थ्योरीज आती हैं, हर रोज. प्राइस एक्शन आजकल हिट हो गई है. पहले PE की बात करते थे, हाँ. फिर उसके पहले फ्री कैश फ्लो की बात करते थे सिर्फ. उसके पहले बात करते थे कि भाई हम तो बफेट इंडिकेटर यूज करेंगे, जो मार्केट कैप और GDP का रेफरेंस होता है. फ्लेवर्स हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं. अभी AI की बात होने लग गई है, तो ट्रेडिंग विद AI, राइट, ट्रेडिंग विद AI विद इन्वेस्टिंग, ये भी चला जाएगा. कोर सेम ही है. कोर क्या है? इन्वेस्ट इन गुड businesses. Long term में fundamentals will only win because the price will follow fundamentals. Short term में ऊपर नीचे हो सकता है. जैसे if I tell you about IDFC है, if I tell you about SGFC, वो लोगों का सेंटिमेंट खराब है. जैसे आप IDFC को ले, एंड बताओ, आई हाईली रेकमेंड सबको एक बार बस गूगल ही कर लेना, क्वार्टर रिजल्ट किसी कंपनी का एक बार खोल लो बस. इट इज सो इजी, इट इज सो इजी टू अंडरस्टैंड. इट्स जस्ट दैट कि हमारे दिमाग में फिट है कि भाई ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आई कांट डू इट, and we want to perceive it and tackle it in a complicated manner. It's the simplest thing, and that's it. ये बस inhibitions हैं जो रोकती रहती हैं यार. मुझे तो बुरा लगता है कि, and this genuinely, you know, hits me so bad, the realization. And this is not only with everyone, this is my friends also. They are convinced कि stock market, they are not smart enough. उनमें दिमाग नहीं है. हाँ, जो बोलेगा डाल देंगे, अरे बाद में देख लेंगे. एंड दे गिव देम सम एक्सक्यूजेस कि मेरे पास टाइम नहीं है. और आप ये देखो कि एक्सक्यूज क्यों हो रहा है? बिकॉज ही इज स्कैर्ड ऑफ लूजिंग मनी. दैट्स द फैक्ट. बट वो उसका फियर इतना इन डेप्थ है that he is giving logical reasoning to himself for that fear कि मैं भी काम कर रहा हूँ, अभी जॉब कर रहा हूँ, मैं भी ये कर रहा हूँ, मेरे फैमिली का टाइम देना है, जो लॉजिकली यू वुड फाइंड इट करेक्ट. तो आप देख लो कुछ, when people ask कि don't be scared of anything, if I ask you, what are you scared of, शायद आपको पता भी ना. I'll tell you 5 things, tell me 5 things that you're scared of. आप बोल दोगे छिपकली से, या फिर claustrophobic or something like this. People don't even know their fear.
एंड दैट्स द हार्श रियलिटी. फियर को टैकल करना छोड़ो, नेवर गिव अप छोड़ दो. पहली बात, पहले तो अपना फियर तो डिस्कवर कर लो. तुम्हें डर किस चीज से लगता है? और जब बहुत बार व्हेन यू डिग इन ना, तो मार्केट साइंस की बात करूं तो पीपल दे आर स्केयर्ड ऑफ लूजिंग मनी. दैट्स द बॉटम लाइन. एंड दे डोंट नो इट एंड दे हैव नॉट रियलाइज्ड इट. एंड इफ यू टेल देम दैट यू आर फियर लूजिंग मनी, वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा. बहुत नेचुरल है उसके लिए वो. एंड दे से दे हैव लैक ऑफ टाइम. अगर मैं बोल दूं किसी को कि अच्छा मेरे पास 10 करोड़ रुपए रखे हैं, अच्छा जल्दी आके ले ले, तो मुझे कोई क्या बोलेगा? उसके पास फैमिली टाइम को टाइम देना है, या फिर उसको ऑफिस जाना है, या बॉस वो सब छोड़ छाड़ के आ जाएगा यहाँ पे, चाहे यूएस कहीं से भी आए. राइट. तो ओनली पीपल से दिस, उनको पता ही नहीं द पोटेंशियल ऑफ स्टॉक मार्केट्स टू लर्न. एंड आई टेल यू, दैट्स अ ब्यूटी. It took me 15 minutes to understand compounding. It took me 5 years to truly understand it. It took me 15 minutes to read compounding. It took me 5 years to understand it. मैंने शुरू नहीं किया कंपाउंडिंग से. इफ आई हैड दैट सेंस, बट वही एरोगेंट स्टेज में मैं अभी कहीं और होता कि आई वुड हैव माय पोर्टफोलियो वुड हैव बीन एट अनदर लेवल. एंड ये वो ये चाहे लोगों को जितना भी बोल लो, नहीं, उनको कॉम्प्लिकेट करना है, उनको ये नहीं करना है. फिर आजकल ये कूल हो गया है दैट इन्वेस्टिंग इन 20s इज स्टूपिड, स्पेंड मनी इन एक्सपीरियंसेस और उड़ा दो, लाइफ जियो. जो ये थॉट है, मतलब जैसे वन ऑफ माय वाइस फ्रेंड, राइट, शी बॉट अ 4 लाख रुपीज बैग. 4 लाख. यहाँ मिडिल क्लास परिवार से 4 लाख में सेंट्रो आ जाती थी. राइट. 4 लाख का बैग कैसे खरीद सकते हो? इट्स एलियन टू मी. And you know how much she's earning? Her package must be 60,000, 70,000 a month. और 4 लाख का बैग ले लिया. अब when I asked her कि भाई क्या सेंस है, तो she's like लाइफ तो एक है, मुझे ये करना है, और I want to be happy. कभी भी कुछ भी हो सकता है. अब इसका कोई डिबेट नहीं है, बिकॉज मैं इंटेलेक्चुअल IQ क्वेश्चन से डिबेट कर रहा हूँ, नंबर्स की बात कर रहा हूँ. वो इमोशनल क्वेश्चन से डिबेट कर रही है. अगेन नॉट सेइंग कि इमोशनल क्वेश्चन खराब है, IQ, वो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. तो पहली चीज तो यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ दैट व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ. यू वांट टू बी हैप्पी, यू वांट टू चिल, यू वांट टू स्पेंड, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है. इफ यू वांट टू गो, सम पीपल आर दैट जो पैसे बचाएंगे बट एक्सपीरियंसेस में स्पेंड कर देंगे, लाइक इन हॉलिडेज, इन एक्सपेंसिव ट्रिप्स, इन एक्सपेंसिव थिंग्स, इन बंजी जंपिंग, which I respect. I feel कि your experiences stay with you for the rest of life. On the other hand, some people, they care about a fancy car, they care about good shoes, they care about good watch, right? And again, we cannot judge them. उनको है तो है जरूरी यार. और सोसाइटी में एक पॉइंट में पड़ता है फर्क. इफ यू गो टू योर फैमिली फंक्शन इन अ क्रैपी ऑल्टो, टूटी फूटी पड़ी गाड़ी, और आपके परिवार वाले मर्सिडीज में आ रहे हैं, वो होंडा सिविक में आ रहे हैं, तो खुद की इज्जत नीचे. इट्स अ सिचुएशन. तो आई कांट टेल दैट पर्सन कि नहीं सोसाइटी से फर्क नहीं पड़ता. पड़ता है उसको फर्क, एंड इट्स ओके, वी आर ह्यूमंस. So you need to understand yourself कि everyone, what do you want from life? It doesn't mean कि I'm asking you कि भाई सवा एक एक रुपए इन्वेस्ट कर दो, खाना पीना छोड़. Has to be a balance. मार्केट्स में बैलेंस होता है. बट इवन इफ यू इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट कंपाउंडिंग में ना, मैं सबको बता रहा हूँ, योर लाइफ विल चेंज. It will not you who will be financially free when you turn after 20-30 years. Your next 2 generations will be born financially free because of you. And that's the opportunity we have. Yeah, मैं काफी पार्ट I think digress कर गया. No, so that was, I think, totally relatable with us students, Right. especially. Like you Yes. said about the finance qualifications and all. And with all due respect, your brothers is also a CFA. Right, And right. what do you think, like, किस हद तक relevance है of this bookish knowledge that we read in CFA and CA, and when we really apply them in our real life? Like, what do you think? Like, for like from my aspect, I believe सिर्फ bookish knowledge से कुछ नहीं होगा. It's more about practical thinking. जब तक हम practical लोगों को हम like WWE में हम fight करते हुए देख रहे हैं लोगों को, but we don't know what is happening there in the ring, what pain they are going to, until and unless we are a part of it. So Right. what do you think on it?
यस, ये सबसे पहले तो फाइनेंस एक बहुत बड़ा डोमेन है, ठीक है? तो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट टैक्सेशन ऑडिट, मुझे नहीं आता, है ना? मेरा एक्सपर्टीज क्या है? इक्विटी रिसर्च में। एक सीए का क्या है? टैक्स ऑडिट में। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू डू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टू फाइंड वैल्यूएशन ऑफ अ स्टार्टअप। तो फाइनेंस एक बहुत बड़ा डोमेन है। सीए सीएफए इज वर्किंग ऑन डिफरेंट डोमेन्स ऑल टुगेदर। तो अगर मैं सीए की बात करूं, तो टेक्निकली सीए की करिकुलम और उसका काम इज टैक्स एंड ऑडिट। इट इज नॉट वैल्यूएशन ऑफ कंपनी, इट इज नॉट इन्वेस्टिंग। इक्विटी रिसर्च उनके उसमें बहुत छोटा सा कोई चैप्टर होगा। तो यस, इफ यूर सीए, it'll be easier for you on how you approach things, financial books वगैरह, you will have greater insights, but doesn't mean that you're a great investor. I personally, मेरे आसपास, I don't think I've met any CA पिछले 10 साल में who's an excellent investor, right? तो होंगे, but वो it's not in their thing. अब आते हैं CFA. So if somebody wants to do stock market, right? CFA, I would say, is the closest program for that. CFA teaches about ethics, CFA, and बहुत मेहतर लेस कि जो भी हम सोच रहे हैं, जो हमारी लर्निंग्स हैं कि लॉन्ग, ये सब CFA के रूल्स हैं। जो भी आपने किया है, इट वाज लाइक, इट्स लाइक अ CFA चैप्टर ओनली, जो अभी तक हम अभी बात कर रहे हैं, राइट? एंड तो इट हैज, इट्स ओके। आई फील बुकिश नॉलेज से यू, आपके लिए ईजियर स्टार्ट हो जाता है, फॉर श्योर, अनडाउटली। जैसे मैं कॉलेज नहीं गया हूँ, मैं 2000 जब स्कूल खत्म हुआ 2010 में, उसके बाद आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओपन स्कूलिंग, MBA ऑल्सो थ्रू ओपन स्कूलिंग। मेरा सिर्फ मार्केट्स में ही है, मुझे और कुछ करना ही नहीं है ना, मुझे कुछ आता है। तो इज इट ईजी नॉट टू डू अ प्रोफेशनल डिग्री एंड सर्वाइव? नहीं। when you don't go to college, odds are stacked up against you, and it is 2010, much before when being college dropout was cool, right? तो उससे बहुत पहले की बात है, एंड हर चीज तुम्हारे अगेंस्ट होती है। यू डोंट गेट द एक्सपोजर, जैसे आपको, आपके ऑडियंस को इतना अच्छा मिल रहा है एक्सपोजर, कोई चांस नहीं मिलने का। बट इट डिपेंड्स ऑन यू। तो फॉर मी इट हैज टू बी अ बैलेंस। व्हाई डिडंट आई डू CFA? बिकॉज आई नो पढ़ाई मेरा स्ट्रॉन्ग सूट है ही नहीं, तो मुझे उसमें टाइम वेस्ट ही नहीं करना। इट्स लाइक यू नीड टू नो योर स्ट्रेंथ्स। तो हाँ, बाय प्रोफेशनल डिग्रीज यू गेट इजियर एक्सेस, पर इसका मतलब ये नहीं दैट यू विल ए स्टॉक मार्केट्स किसी भी हालत में। मुझे ऐसा कोई है ही नहीं कि हर CA प्रॉफिटेबल है और हर CA क्या कहते हैं, हर CFA इज प्रॉफिटेबल। बिल्कुल नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द CAs and CFAs, they don't even invest. They advise people on how to invest. So I feel we come to an end of this session. Finance की बात करते रहेंगे तो शायद कभी रुकेंगे ही नहीं. Obviously, when we have such a phenomenal speaker with us. So yeah, I would like to conclude this enriching podcast, and my heartfelt gratitude to you, Harsh Goyla sir. Your Thank you so invaluable much. insights and navigating us post budget and for financial landscapes. Your wisdom emphasized the importance of staying informed, for sure, like diversifying investments and aligning financial plans with personal goals. I'm sure the people who have attended this session have learned a lot today. And as we bid farewell, we encourage our audience to apply these lessons in their financial journeys. Thank you for joining us on this exploration of decoding the impact of national budget and market. Stay tuned for more, as this podcast is just the beginning of a commitment at the finance and investment sector. Thank you so much. Until Thank next you time. so much, guys. It Thank was you a so much, pleasure. sir. Thank you so Thank you much. so much, sir.